This is my world. Here, knowledge is my best friend that addresses me towards success. Welcome to the Pioneer International School. 20 એકરમાં ફેલાયેલું પાટણનું એકમાત્ર ગ્રીન કેમ્પસ. Digital classroom, updated library, kids park and world-class sports facilities, world-class curriculum, music and dance, science and computer lab, community awareness program, safe transportation facility. એવરી ચાઇલ્ડ ઇઝ યુનિક. જરૂર છે એમને ડેવલપ કરવાની અને આ કામ ફક્ત એક યુનિક સંસ્થા જ કરી શકે. To develop my future, so I am here. Pioneer International School. Admission open at Golapur, Patan. Hello students, how are you? Myself Madhav Sharma, your physics teacher, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan. Here we are preparing students for IIT, JEE and NEET along with their schooling program. So it is the one of the most fine option for you in the North Gujarat, where students are getting the topmost rank in the district. Every year, the school is giving top rank in the district as well for the NEET and JEE, and also the percentile of the students are very high that they are in the district merit. So this year the school has planned to launch itself into the CBSE also. So here I am starting the second lecture of English medium physics CBSE students. In last lecture, we have studied about SI units, physical quantities, and some systems of units like CGS, MKS, and FPS. So before going to that, let me recall that lecture by some of the objective questions which may be asked in the competition exam. So these are few questions which have been taken from the previous exams. First is, देखिए ये आपके केवल नॉलेज को रिकॉल करने के लिए है कि लास्ट लेक्चर को आपने किस तरीके से देखा है. ओके, सो चेक योरसेल्फ एंड कनेक्ट विद मी. हाउ मेनी एसआई यूनिट्स आर देयर, मींस जो कल आपको लेक्चर पढ़ाया गया उसमें कितने एसआई यूनिट्स थे. योर ऑप्शंस आर 4, 7, 3 एंड 9. ओके, सो आपने गेस कर लिया होगा बिकॉज देर आर 7 एसआई यूनिट्स. There are 7 SI units. The names are length, mass, time, electric current, temperature, luminous intensity, and amount of substance. So there are 7 SI units. So option B is the correct answer. You may note all these questions with your screenshot. Then next is, what is the SI unit of the luminous intensity? So luminous intensity का इनमें से कौन सा SI यूनिट है? सो मीटर इज द SI यूनिट ऑफ लेंथ, जूल इज द SI यूनिट ऑफ वर्क, और SI यूनिट्स की लिस्ट में से ये है भी नहीं है. और कैंडेला इज द SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी. सो C will be your correct answer. और एम्पियर इज द SI यूनिट ऑफ करंट. सो इट विल बी नॉट द करेक्ट. कैंडेला इज द राइट आंसर. योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कैंडेला, C. Well, how will you express 330 degree? Okay, 330 degree in radian. So कल आपको रेडियन में एंगल को कन्वर्ट करना भी सिखाया था. तो उसमें देखिएगा उसका फॉर्मूला बताया था आपको कि थीटा को अगर कन्वर्ट करना है सो थीटा इक्वल टू पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय थीटा. सो हियर थीटा इज 330, पाई 180 मल्टीप्लाई बाय 330. 30 से इसको कट करेंगे 11 टाइम एंड 30 को इससे कट करेंगे 6 टाइम. सो द आंसर विल बी 11 पाई बाय 6 एंड हियर इज योर करेक्ट आंसर A. ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को?
इनको देखते जाइएगा। और एक छोटा सा, इट इज अ स्मॉल प्रैक्टिस फॉर यू, इसके अलावा आप टेक्स्ट बुक फॉलो करेंगे तो उससे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। हमने कल दो क्वांटिटी पढ़ा था, एक जो फंडामेंटल था, जो ऐसा यूनिट जिससे बिलोंग करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरा था डिराइव्ड। तो फंडामेंटल में 7 यूनिट्स लिए थे अपन लोगों ने। सो इनमें से कौन सा डिराइव्ड है, यानी कि जो फंडामेंटल होगा उसको हटा देना है। किलोग्राम, ओके, एम्पियर, पास्कल और सेकंड। इसको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को और क्लैरिफाई कर देता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। सो इट विल बी मोर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड यूनिट। सो किलोग्राम, एम्पियर, pascal and second, because all these are basic units. So pascal is the SI unit of pressure, okay, but it is derived. Got it? So C is the correct option. इन 4 क्वेश्चंस के बेस पे आप खुद पिछले लेक्चर को रिकॉल कर पाएंगे कि हमने कुछ पढ़ा, वो समझ में आया नहीं आया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक फॉर यू इज SI सिस्टम के कुछ प्रीफिक्सेस होंगे जिनको हमको मेजर करना होगा, वो मैं आपको समझाता हूं। So hello students, next is your topic abbreviations in powers of 10। मैंने कहा था आपको कि अब अपन क्या पढ़ेंगे, SI यूनिट के कुछ प्रीफिक्सेस पढ़ेंगे। हमने पढ़ा कि लेंथ का यूनिट मीटर होता है, बट जब किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट बहुत ज़्यादा मीटर्स में आ जाए या मीटर का कोई बहुत छोटा पार्ट हो जाए, ये केवल लेंथ की बात करें। ऐसा हर एक क्वांटिटी में हो सकता है। जितनी भी हमने यूनिट्स पढ़ी उन सभी यूनिट्स का छोटा या बड़ा पार्ट हो सकता है। देयर में बी द लार्जर क्वांटिटी और स्मॉलर क्वांटिटी। सो उन सबको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उसके प्रीफिक्स में, यानी कि उस SI यूनिट के आगे कुछ क्वांटिटी लगानी पड़ती है, कुछ एक प्रीफिक्स, एक लेटर लगाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको छोटी क्लासेस में हम लिखते हैं कि ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ 7.5 सेंटीमीटर। ओके, सो व्हाट इज दिस 7.5 सेंटीमीटर? 7.5 सेंटीमीटर मीन्स, सेंटी मीन्स होता है 10 की पावर -2। यहां से एक बार अपन डायरेक्ट एग्जांपल ले रहे हैं, उसको टॉपिक को फिर से स्टार्ट करें। ओके, सो सेंटी मीन्स 10 की पावर -2 मीन्स इट इज 1/100 पार्ट ऑफ मीटर, मीन्स 7.5 टाइम्स द 1/100 पार्ट ऑफ अ मीटर हमको ड्रॉ करना है। ऐसे ही कुछ ये है जो मैं आपको समझाने वाला हूं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। यस, हियर इज द प्रीफिक्स, जिसको हम लोग पूरा नाम बोल रहे हैं, उसका सिंबल हम रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे और उसका वैल्यू क्या रहेगा, मल्टीपल के फॉर्म में। सो फर्स्ट इज डेका। डेका का सिंबल है DA स्मॉल में और 10 की पावर 1। ओके, सेकंड इज हेक्टो। हेक्टो का सिंबल H एंड देन इट इज 10 पावर 2। देन इफ आई से कि 20 हेक्टोमीटर मीन्स 20 हेक्टोमीटर का मीन्स है 20 मल्टीप्लाई बाय 100। 10 की पावर 2 मीन्स क्या होता है 100। सो 20 मल्टीप्लाई बाय 100 मीटर। ओके, देन किलो। किलो मोस्टली किलोमीटर, किलोग्राम, किलो ओम, ये कुछ क्वांटिटीज के आगे किलो आप लोगों ने सुना होगा। सो किलो इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल के और इट इज मोस्टली कैपिटल के। ओके, एंड 10 की पावर 3। Okay, so like you have heard kilo ohm. Okay, so kilo ohm means 1000 ohm. 5 kilogram sugar means 5000 gram sugar. So kilo means 10 power 3 and here mega. इसमें मैंने आपको एक लॉजिक बताया था कि अगर कोई चीज किसी साइंटिस्ट के नाम पे है या कोई पर्टिकुलर नेम को सजेस्ट करा तो उसको कैपिटल लेटर्स में, यहाँ से इसको कैपिटल लेटर्स में लिखना है, कैपिटल M। कैपिटल M मीन्स 10 की पावर 6। मेगा को रिप्रेजेंट करता है, लाइक मेगा हर्ट्ज। मेगा हर्ट्ज, व्हाट इज मेगा हर्ट्ज?
जनरली जो FM यूज करते हैं हम रेडियो, उस रेडियो की फ्रीक्वेंसी लाइक 93.5, 95, ये सब जो है वो FM की जो वैल्यूज है वो किस में मेजर होती है? मेगाहर्ट्ज में। सो मेगा रिप्रेजेंट 10⁻⁶, मेगा ओम भी होता है। सो पीछे जो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग यूनिट लगेगी वो हो जाएगी, लेकिन उसका वैल्यू का मल्टीप्लायर मेगा के लिए 10⁻⁶ रहेगा। ओके, साथ में चलिएगा आप लोग। नेक्स्ट है गीगा। गीगा इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल G and its multiplier is 10⁻⁹. Means wherever gigahertz is there, you have to use 10⁻⁹. इन सभी को कब यूज करना है? जब उसकी वैल्यू को हम न्यूमेरिकल में पुट कर रहे हैं, देन हम ये मल्टीपल्स उनके साथ लगाएंगे। देन टेरा, टेरा कैपिटल T 10⁻12 means 10⁻12 will be written in place of tera. Like आजकल जो हार्ड डिस्क आती है लैपटॉप की वो टेराहर्ट्ज में आती है। टेरा मीन्स 10⁻12, हालांकि वो बाइनरी में चलती है इसलिए उसकी वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन टेरा का मतलब होता है 10⁻12। ओके, जीबी गीगाबाइट, सो देयर इज 10⁻9। ओके, हालांकि कंप्यूटर किसी और लैंग्वेज पे चलता है, बट जीबी मीन्स 10, जी का वैल्यू है 10⁻9, टेरा का वैल्यू है 10⁻12। देन इसके ऊपर वाले ज्यादातर यूजेज आते हैं पेटा, पेटा मीन्स 10⁻15 एंड एक्सा, एक्सा मीन्स 10⁻18। ये सभी पॉजिटिव पावर्स हुई, और जब किसी लार्ज वैल्यू को पढ़ेंगे तो उसके बारे में ये सिंबल्स यूज होंगे। देन आई विल कम हियर। सो दिस आर नेगेटिव पावर्स मल्टीपल, मीन्स दोज हुज पावर्स आर नेगेटिव। डेसी, डेसी is represented by small d, whereas data is represented by DA. Okay, 10⁻⁻1, its value is 10⁻⁻1। इसका मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मीन्स मीटर का 10th पार्ट, मीटर का 100th पार्ट सॉरी, और डेसीमीटर मीन्स मीटर का 10th पार्ट। गॉट इट? अगेन क्लियर करता हूं मैं कि डेसी का मीनिंग है 1/10th पार्ट ऑफ मीटर, और सेंटी का मीनिंग है 100th पार्ट ऑफ अ मीटर। ओके, देन मिली, डेसी, सेंटी, मिली। मिली मीन्स 1000th पार्ट ऑफ क्वांटिटी, मीन्स 10⁻⁻3। लाइक मैं आपको मिली हेनरी बोलूं, हेनरी किसका यूनिट है? 12th क्लास में आता है। हेनरी इज द ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। ओके, सो मिली हेनरी इज 10⁻⁻3 हेनरी। मिलीमीटर डिस्टेंस के लिए यूज होता है, तो मिलीमीटर मीन्स 10⁻⁻3 मीटर। गॉट इट? ऑल दीज आर एग्जाम्पल टू शो दीज पावर्स। गॉट इट? देन माइक्रो, माइक्रो माइक्रोस्कोप के लिए भी यूज होता है, जो 10⁻⁻6 साइज के ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकता है। माइक्रो मीन्स इसको डिनोट करते हैं म्यू से। जो यू लिखा जाता है उसी को इस साइड से इस तरह से कर लेते हैं, ये म्यू कहलाता है। म्यू को 10⁻⁻6 यानी माइक्रो इज रिप्रेजेंटेड बाय 10⁻⁻6। लाइक माइक्रो कूलाम, कूलाम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, सो माइक्रो कूलाम मीन्स 10⁻⁻6। आप जो भी पढ़ेंगे ये सब आपको पूरी फिजिक्स 11th एज वेल एज 12th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6। नैनो, नैनो मीन्स 10⁻⁻9। सो नैनो टेक्नोलॉजी वर्ड गुजरात में बहुत फेमस है ये। तो नैनो मीन्स 10⁻⁻9। 10⁻�9 के ऑब्जेक्ट्स को डिजाइन करना और उस सेल्यूलर लेवल पर जाकर के उस प्रॉपर्टीज को देखना, उनको व्यू करना, स्टडी करना और ऐसी डिवाइसेस बनाना जो उस लेवल पे कंट्रोल हो जाए, नैनो टेक्नोलॉजी कहलाता है। तो नैनो मीन्स 10⁻⁹। नैनो मीटर मीन्स 10⁻⁹ मीटर। गॉट इट? ये कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। पिको, पिको इज 10⁻12। लाइक पिको कूलाम चार्ज के लिए ज्यादा यूज होता है, तो 10⁻12 कूलाम। पिको मीटर, PM, छोटा p आएगा m, उधर भी p था पेटा का, ये p कैपिटल आएगा, p स्मॉल होगा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कैपिटल में दिस पेटा, स्मॉल p मीन्स पिको। गॉट इट?
कुछ वर्ड्स ऐसे मिसमैच होते हैं, उनको विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो 10⁻12 आता है पिको का। ओके, फेम्टो, फेम्टो मीन्स 10⁻15 और एटो मीन्स स्मॉल ए से लिखेंगे और 10⁻18। हियर एक बार मैं आपको समराइज करा देता हूँ। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, इन सब में इसके बाद 3 का टेबल चलता है। 3 + 3 3 3 3 ऐसे गैप रहता है इसका। ओके, देन हियर डेका, हेक्टो, इसके बाद 3 का चलता है। किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। इस तरीके से अगर आप इनको लर्न करते हैं तो इट विल मेक यू द मोर इजियर फिजिक्स। ओके, इट विल मेक यू टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स इजीली। जब भी किसी न्यूमेरिकल्स में वैल्यू आती है तो अगर ये हमको प्रीफिक्सेस मालूम नहीं होते तो ये माइन्यूट मिस्टेक एक बिगर मिस्टेक में कन्वर्ट हो जाती है, बिकॉज कुछ आंसर्स कंफ्यूज करने के लिए ऐसे पावर्स की फॉर्म में रखे जाते हैं। तो होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस एंड इनको आप लर्न करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जो स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए इन्हीं को यूज करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा, और कुछ लार्जर यूनिट्स की इससे भी बड़ी यूनिट्स हो सकती है जो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए काम आती है किसी बड़ी चीज को। सो क्या टॉपिक होगा अगला अपना? स्मॉल एज वेल एज लार्ज क्वांटिटीज को कैसे, लाइक डिस्टेंस वगैरह को कैसे मेजर किया जाता है। ओके, हैव इट, और इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसको लर्न कर लें। थैंक यू। So here is your next topic, practical units to measure small distances. हम लोग कुछ कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स पढ़ने वाले हैं। उसका फर्स्ट पार्ट होगा प्रैक्टिकल यूनिट्स टू मेजर स्मॉल डिस्टेंसेस। लाइक हमको बहुत ज़्यादा यानी कि न्यूक्लियर साइज के किसी ऑब्जेक्ट का साइज मेजर करना है, लाइक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन न्यूक्लियस, या उससे भी कुछ आसपास का साइज का मेजर करना हो, तो फर्स्ट यूनिट जो होगा वो होगा फर्मी, जो फेम्टो से बना है। पिछली टॉपिक में जो बताया आपको कि फेम्टो यानी कि 10⁻15। सो इट इज द स्मॉल प्रैक्टिकल यूनिट यूज टू मेजर न्यूक्लियर साइज। किसी भी ऑब्जेक्ट के न्यूक्लियस का जो साइज मेजर होता है वो फर्मी मीटर में होता है, और 1 फर्मी मीटर को 10⁻15 मीटर लिखता है। ओके, और इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है, 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, उसका साइज जो होता है वो 1.2 FM होता है। मीन्स हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का जो साइज है वो 1.2 फर्मी मीटर होता है। 1.2 × 10⁻15 मीटर। ओके, सो नेक्स्ट इज, इस तरह से ये न्यूक्लियर साइज के लिए यूज आएगा एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट वन इज एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में क्या होता है, इसको एक के पीछे सर्कल बनाया जाता है एंगस्ट्रॉम, और इट इज यूज टू मेजर वेवलेंथ ऑफ लाइट। यहाँ 2 ऐसी यूनिट है जो कॉमनली लाइट की वेवलेंथ को मेजर करने में काम आती है। लाइट हो गई या साउंड हो गया, इनकी वेवलेंथ को मेजर करते हैं। और एंगस्ट्रॉम कभी कभार बायोलॉजी में सेल की साइज या सेल के कुछ पार्ट्स की साइज को भी मेजर करने में काम आता है। एंगस्ट्रॉम ए के ऊपर एक डॉट यानी नॉट लगता है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर। ये प्रीफिक्सेस में नहीं था, ये एक स्पेशल कॉमन यूनिट है जो डिस्टेंस को मेजर करने में काम आती है, साइज को मेजर करने में काम आती है। 10⁻10 मीटर मीन्स एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर, व्हाट इज नैनोमीटर? नैनो मीन्स पढ़ा था पहले 10⁻10। सो इट इज यूज टू अगेन मेजर द वेवलेंथ ऑफ लाइट। 10⁻9 मीटर नैनो। सो जो लाइट हम लोग देख पा रहे हैं ये विजिबल लाइट कहलाती है, और इस लाइट का वेवलेंथ अगर देखा जाए तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम तक का होता है, यानी कि ये उसकी वेवलेंथ को एक्सप्रेस कर रहा है एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट जो लास्ट है आपके लिए कि माइक्रोन या माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर अगेन स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करता है, और 1 माइक्रोमीटर को 10⁻6 मीटर कहते हैं। सो ये कुछ हमारे पास स्मॉल यूनिट्स हुई जो हम डिस्टेंस को मेजर करने में काम लेंगे। अब हम लेते हैं
जो लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए काम आएगी, उन यूनिट्स के बारे में बात करें। हेलो, so students, the next topic is to measure the practical units for large distances. लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स बनाई गई है और इनको ज़्यादातर फिजिक्स में एस्ट्रोनॉमी में यूज किया जाता है। लाइक मैं कहूँ कि एक सिटी से दूसरे सिटी की डिस्टेंस मेजर करनी है तो हम किलोमीटर में मेजर कर लेंगे, और अगर मुझे किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री की डिस्टेंस मेजर करनी है फिर भी किलोमीटर में मेजर करना पॉसिबल है। बट इफ वी आर टू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम वन प्लेनेट टू अदर प्लेनेट और sun to the other planet, then the kilometer will not be sufficient. Okay, since the SI unit of distance is meter, so ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो इसके लिए कुछ पहले से ही शॉर्टकट बनाए गए हैं एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स में। उनमें फर्स्ट है आपका लाइट ईयर। सो जैसा कि नाम से पता चल रहा लाइट ईयर, एक ईयर में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, उस डिस्टेंस की वैल्यू को लाइट ईयर कहा जाता है। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन अ ईयर इज नोन एज लाइट ईयर। सो बेसिकली लाइट ईयर मीन्स जब अपन टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है। तो यहाँ पर एक ईयर को अपन स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। वन ईयर मीन्स 365.25 डेज, 365 1/4। ओके, 365 1/4 डेज। तो 365.25 को 24 यानी डेज में कन्वर्ट कर दिया, फिर 60 से मल्टीप्लाई किया यानी वो आवर्स में कन्वर्ट हो गए, फिर 60 से मल्टीप्लाई किया वो मिनट और सेकंड में कन्वर्ट हो गए। ओके, फिर से बोलता हूं मैं, 360.25 डेज होते हैं वन ईयर, इसको 24 से मल्टीप्लाई किया ये डेज में कन्वर्ट हो गया, 60 से मल्टीप्लाई किया डेज आवर में कन्वर्ट हो गए, देन सेकंड में कन्वर्ट हो गया। ओके, सो 365.25 24 60 60 इसको कन्वर्ट करके स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 9.467 10⁻15 मीटर। ये एक लाइट ईयर की वैल्यू है। ओके, देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मीन्स अर्थ और सन के बीच का एवरेज डिस्टेंस। As we know that the Earth travel around the Sun on elliptical orbit. Okay, so इस elliptical orbit पर अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस होती है। so उस डिस्टेंस का एवरेज को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं और इसकी वैल्यू 1.496 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 मीटर। ओके, देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट थोड़ा लाइट ईयर से छोटा रहेगा। ओके, देन मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास पार्सेक। पार्सेक को कहा जाता है पैरेलैक्टिक सेकंड। ओके, सो द डिस्टेंस एट विच, वो डिस्टेंस जहां पर एन आर्क ऑफ लेंथ वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेंथ का आर्क 1 सेकंड का एंगल बनाता है। ओके, सो क्या हुआ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मीन्स 1 AU का आर्क, ये आर्क है, ये मिलकर के जिस पॉइंट पर 1 सेकंड का एंगल बनाएगा उस पॉइंट की यहाँ से जो डिस्टेंस रहेगी वो डिस्टेंस क्या कहलाएगी, 1 पार्सेक कहलाएगी। चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ओके, 1 पार्सेक। सो अगर ये आर्क है तो ये पार्सेक किसको डिनोट कर रहा है, रेडियस को। ओके, अब मैं यहाँ पर इस 1 सेकंड के बारे में थोड़ा सा आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि जैसा कि हमने पढ़ा कि एंगल का यूनिट क्या होता है, डिग्री। ओके, और डिग्री को हम लोग रेडियन में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, रेडियन में। सो कल आपको बताया गया था कि 1 डिग्री की वैल्यू होती है π/180। ओके, 1 π/180। ओके, देन 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 60 मिनट को कैसे, मिनट मीन्स 1 स्लैश डिनोट करेगा।
सो 60 मिनट की वैल्यू भी यही हो जाएगी π/180 रेडियन। यहाँ से 60 डिवाइड में करेंगे तो 1 मिनट इज इक्वल टू π/180 और साथ में डिवाइड में 60। ये रेडियन में किसकी वैल्यू आ गई? 1 मिनट की। और सिंस 1 मिनट किसको डिनोट करता है? 60 सेकंड को। सेकंड को किससे डिनोट करते हैं? सेकंड को डबल स्लैश से डिनोट करते हैं। सो 60 सेकंड विल गिव π/180 मल्टीप्लाई बाय 160। यहाँ से 1 सेकंड की वैल्यू चाहिए रेडियन में, तो 1 सेकंड यानी 1 और डबल स्लैश इसको 1 सेकंड बोलेंगे। π/180 मल्टीप्लाई बाय 1/60 मल्टीप्लाई बाय 1/60 रेडियन। ये वैल्यू है 1 सेकंड। डोंट पैनिक अबाउट दिस। ये टॉपिक इसी लेसन के एक पार्सेक नाम के टॉपिक पैरेलैक्स मेथड में आपको फिर से बताया जाएगा। ये पूरी वैल्यूज में आपको सेपरेटली एक एग्जांपल के थ्रू वहां पर कंक्लूड करवाएंगे। ओके, सो अभी तो आपको केवल ये वैल्यू डायरेक्ट लर्न करनी है कि 1 सेकंड का रेडियन में रिप्रेजेंटेशन π/180 1/60 1/60 होता है। ओके, यहाँ पर आ जाएंगे। पार्सेक क्या था? पार्सेक मीन्स द डिस्टेंस from earth at which 1 second angle is subtended, the angle of 1 second value is subtended. Okay, so यहाँ पर इस रेडियस को फाइंड करना है। रेडियस क्या होता है? आर्क डिवाइड बाय एंगल। ओके, रेडियस क्या होता है? आर्क डिवाइड बाय एंगल। आर्क की वैल्यू कितनी है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एंगल की वैल्यू 1 सेकंड। इन दोनों वैल्यू को यहाँ रखा तो इससे हमारे पास एक पार्सेक आ जाए। ओके, 1 पार्सेक इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल की वैल्यू रखी, यहाँ पर 1 AU की 1.496 10 पावर 11। 1 सेकंड की यहाँ से मैंने आपको वैल्यू कैलकुलेट करवाई थी रेडियन में, तो 1 सेकंड इज इक्वल टू π/180 मल्टीप्लाई बाय 1/60 मल्टीप्लाई बाय 1/60। इस वैल्यू में पाई की वैल्यू 3.14 पुट करके कैलकुलेटर से आप सोल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3.08 10 पावर 16 मीटर। और ये है एक पार्सेक की वैल्यू। ओके, 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 10 पावर 16 मीटर। इट्स वैल्यू इन लाइट ईयर। इसको अगर लाइट ईयर में कन्वर्ट करें तो 3.26 लाइट ईयर होगा। सो आप अगर समरी वाइज लिखें तो पार्सेक है वो सबसे बड़ा यूनिट। ओके, उससे छोटा यूनिट है लाइट ईयर और उससे छोटा यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। Okay, so what is the largest unit of distance? Parsec. Okay, then light year, then astronomical unit. इन सब की वैल्यूज आप लर्न करें, इस कॉन्सेप्ट को आप पढ़ें। और जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में लास्ट टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस रिवाइज किए थे, तो हम इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कल के वीडियो में करेंगे। टिल देन आप इनको लर्न करिए। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।